If Sn equal to minus 1 raised to the power n upon 2n plus 3 and Tn is this, then summation Sn is absolutely convergent, summation Tn is absolutely convergent, summation Sn is conditionally convergent, and summation Tn is conditionally convergent. From option A and C, you can see if one is true, then other will be false. And from option B and D, if one is true, then other will be false. Now, what is conditionally convergent and absolute convergent? As if summation minus 1 raised to the power n an is a series, then if summation an, because I made this series as a positive term series taking mod values of all terms, then this series, if this series is convergent, if convergent, then we say this is absolutely convergent. When conditionally convergent, when original series is convergent but absolute series is not convergent, this series is convergent but this not convergent, then we say conditionally convergent. So if option A is true, then C will be false. If option B is true, then D will be false, because one is saying absolute convergence and others say conditionally convergent. Now come to solve this problem. First need to check its absolute convergent for Sn. Now Sn equal to minus 1 raised to the power n divided by 2n plus 3, then its summation will be by this. So made this positive term series, then positive term series will be summation 1 upon 2n 2 raised to the power n plus 3, and this series is less than 1 upon 2n. This is geometric series with common ratio half, and we know that geometric series with common ratio less than 1 is convergent. So by comparison test, it is also convergent. Means positive term series or absolute values of terms when we made, then series is convergent. So option A is true. It means absolute convergent. So option C will be false. Now come to the option B. As summation minus 1 raised to the power n upon 4n minus 1, this is Tn, series Tn, then made this positive term series, it will be summation 1 upon 4n minus 1. It can be written as summation 1 upon n, 4 minus 1 upon n. So take this is as Vn. Now Un, now this is as Tn upon Vn. Limit is finite and which is equal to 1 upon 4. So you can apply comparison test. Tn and Vn behave alike. Tn, this is Tn, sorry, positive term series. So Tn positive. I write Tn positive. So this one and Vn behave alike. What Vn is 1 upon n, it is divergent. This series Vn is divergent. So Tn positive term series is also divergent. But you can say by Leibniz test, series Tn -1 raised to the power n upon 4n minus 1. For Leibniz
Leibniz test, you need only left this sign. It means series 1 upon 4 n minus 1. Now this is, consider this is an. So an equal to 1 upon 4 n minus 1. You can see here, as we increase the value of n, then denominator will increase, so resultant will be decrease. So an is greater than an plus 1, means decreasing sequence also limit of 1 upon 4 n minus 1 is tends to 0. So both condition of Leibniz test is fulfilled. So this series Tn is convergent. Summation Tn is convergent, but its absolute value, means mod of Tn, is not convergent. So conditionally convergent. So option A and D is true here. B and C are false. So this one right choice and this one is also right choice. Consider the system of linear equation, this and this. The system is consistent if, यानी कि सिस्टम कंसिस्टेंट होगा कब, अगर ये ऑप्शंस गिवन है तो इसके लिए जब भी आपको सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन के लिए पूछा जाता है और उसके जो कॉफिशिएंट हैं उस पर रिलेशन पूछता है कि कब कंसिस्टेंट होगा, इनकंसिस्टेंट होगा, तो आपको सबसे पहले ऑगमेंटेड मैट्रिक्स कंसिडर करना चाहिए और फिर उस पर वर्कआउट करना चाहिए। तो सबसे पहले मैं इसके लिए ऑगमेंटेड मैट्रिक्स लिख देता हूँ 1 1 5 3 1 2 m 5 1 2 4 k। ये मेरा ऑगमेंटेड मैट्रिक्स हो गया। और कोई सिस्टम कंसिस्टेंट होता है अगर ऑगमेंटेड मैट्रिक्स और कॉफिशिएंट मैट्रिक्स की रैंक सेम होती है। तो सबसे पहले मैं क्योंकि ये नॉन जीरो एंट्री है तो इसके डाउनवर्ड में जीरो बना देता हूँ और फिर यहाँ पर जीरो बनाने के बाद ये मेरी नॉन जीरो एंट्री है, इसके डाउनवर्ड में मैं जीरो बना लूंगा। तो देखते हैं, पहली रो में कोई चेंजेस नहीं कर रहा हूँ मैं, और दूसरी रो को मुझे यहाँ पर डाउनवर्ड जीरो बनाने के लिए इसको सब्ट्रैक्ट करना होगा। तो यहाँ पर 1 आ जाएगा, m माइनस 5 और 5 माइनस 3 यानी कि 2, और इसको भी 0 बना देता हूँ मैं, 0 1 माइनस 1 और k माइनस 3। इस तरह से मैंने फर्स्ट जो वेरिएबल है उसका यूज करके अदर रो से फर्स्ट वेरिएबल को एलिमिनेट कर दिया। अब मैं सेकंड वेरिएबल का यूज करके अदर इक्वेशन से मैं उसको एलिमिनेट कर देता हूँ, यानी कि यहाँ से एलिमिनेट कर देता हूँ। तो फर्स्ट में कोई चेंजेस नहीं, 0 1 m माइनस 5 और यहाँ पर 2, और इसको मैंने सब्ट्रैक्ट कराया, यहाँ पर 0 हो गया, यहाँ माइनस 1 माइनस m प्लस 5 यानी कि ये प्लस 4 आ जाएगा, यानी कि 4 माइनस m, और यहाँ पर सब्ट्रैक्ट कराएंगे k माइनस 5, k माइनस 5। तो इस तरह से आप देख रहे हैं। तो आपका सिस्टम कब कंसिस्टेंट होगा, यानी कि ये अगर नॉन जीरो हो जाता है तो कॉफिशिएंट मैट्रिक्स और ऑगमेंटेड मैट्रिक्स की रैंक सेम हो जाती है, या फिर ये भी जीरो हो जाए और ये भी जीरो हो जाए, दोनों साथ जीरो हो जाए, अलग अलग नहीं कि बस ओनली ये जीरो हो जाए, तो उस केस में आपकी रैंक 2 हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने आपको बताया अगर ये नॉन जीरो हो जाए तो आपकी रैंक 3 हो जाएगी और ऑगमेंटेड की भी 3 हो जाएगी कॉफिशिएंट, यानी कि ये ऑप्शंस इंप्लाई करता है कि सिस्टम कंसिस्टेंट होगा। लेकिन यहाँ पर कहा है कि k नॉट इक्वल टू 5। अगर k 5 नहीं है तो यहाँ पर सपोज करो कुछ एंट्री ले ली हमने, कुछ भी ले ली 5 को छोड़कर, तो यहाँ पर एक नॉन जीरो एंट्री आएगी। लेकिन अगर ये किसी तरह जीरो हो जाता है, यानी कि m की वैल्यू अगर हमने 4 कंसिडर कर ली तो ये जीरो हो जाएगा। उस केस में
कोफिशिएंट मैट्रिक्स का रैंक 2 हो जाएगा और आर्गुमेंटेड का 3 होगा, उस केस में सिस्टम कंसिस्टेंट नहीं होगा। तो ये इसको कंसिस्टेंट की कंडीशन नहीं है। m इक्वल टू 4, अगर यहाँ पर 4 हो जाए, अगर ये 4 हो जाए तो यहाँ पर ये 0 हो जाएगा। लेकिन अगर ये किसी तरह से नॉन जीरो हो जाए तब भी सिस्टम कंसिस्टेंट नहीं होगा, तो ये कंडीशन भी आपकी इंप्लाई नहीं करती है। लेकिन ये अगर किसी तरह से जीरो हो जाए, सिर्फ ओनली ये जीरो हो जाए, अगर ये भी जीरो हो जाता है तो अच्छी बात है, नहीं होता है, अगर नहीं होता है तो फिर तो रैंक 3 हो ही जाएगी, और अगर हो जाता है तो ये इसके लिए कंडीशन से 0 हो जाता है, और ये अगर हो जाता है किसी वजह से 0 तो रैंक 2 हो जाएगी। उस केस में भी, उस केस में इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेंगे। तो सिर्फ अगर ये यहाँ पर 0 हो जाता है तब भी हमारा सिस्टम कंसिस्टेंट हो जाएगा। लेकिन कुछ स्टूडेंट यहाँ पर क्या कर सकते हैं कि वो सारे ऑप्शंस को मिक्सअप कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो की है वो की जो है आपकी ए और डी है, लेकिन जैसे कि मैंने आपको बताया इसकी रैंक अगर 2 करनी है तो के इक्वल टू सॉरी 4 इक्वल टू एम और के इक्वल टू 5, एक तो मेरे पास ये आया। और अगर किसी तरह से यहाँ पर ये नॉन जीरो हो जाता है तो 4 माइनस एम नॉट इक्वल टू 0, और ये कुछ भी हो तो यहाँ से आ जाता है 4 इक्वल टू एम। तो यहाँ से आपको पता चला 4 इक्वल टू एम, तो ये कंडीशन तो सही है। और साथ ही साथ 4 इक्वल टू एम और k इक्वल टू 5, ये दोनों को एक साथ लिखना पड़ेगा, तभी आपका सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर सकता है। तो ये हमारा क्यों नहीं है, क्योंकि m तो 4 है लेकिन k 5 नहीं है। अगर m यहाँ पर 4 हो जाए और k 5 ना हो तब सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा, यानी कि दोनों का कॉम्बिनेशन अगर यहाँ पर होता है तो ही हम इस c को कंसीडर करते। और ऐसे ही k नॉट इक्वल टू 5, यहाँ पर m के लिए कुछ नहीं कहा गया, अगर ये एंट्री आपकी 0 हो जाती है तो हमारा तब भी सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो ये आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर इंडिविजुअल मतलब दी गई थी m या k, कॉम्बिनेशन नहीं पूछा गया था कि m और k के। अगर इस तरह से देता कि m नॉट इक्वल टू 4 और k इक्वल टू एनी, तो ये तब भी सही हो जाता। अगर यहाँ पर इस तरह से देता k नॉट इक्वल टू 5, k नॉट इक्वल टू 5 और m नॉट इक्वल टू 4, तब भी ये ट्रू हो जाता। लेकिन ये वाली कंडीशन नहीं दी है उसने कि m4 नहीं होना चाहिए। यहाँ पर कहा है m इक्वल टू 4, उसके साथ यहाँ पर ये नहीं बताया गया है कि k इक्वल टू 5 आना चाहिए, इसलिए ये कंडीशन यहाँ पर फेल हो जाती है। यहाँ पर k इक्वल टू 5 तो m कुछ भी हो, अगर यहाँ पर m 4 हो जाता है तब भी सही है, 4 नहीं होता है तब भी सही है। तो ये कंडीशन इसलिए ट्रू है कि ये अपने सिर्फ ओनली k के लिए भी k इक्वल टू 5 हो जाए तो ये ट्रू हो जाता है। इफ डबल इंटीग्रल फ्रॉम 0 to 1 और 2y से 2 e raised to the power x square dx dy इक्वल टू दिस, देन k इक्वल्स। तो हमें k की वैल्यू निकालनी है। तो इस टाइप के क्वेश्चन में आपको क्या करना है, यहाँ पर देखिए सबसे पहले फोकस यहाँ पर कीजिए। यहाँ पर सबसे पहले x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रल किया गया है, तो यहाँ पर जो फंक्शन है वो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, और जो यहाँ पर एक्सपोनेंट है वो एक्स स्क्वेयर है। तो इसका जो इंटीग्रल होता है वो 2x यहाँ इंटीग्रांड में नहीं है, तो हम इसको एक्स के रेस्पेक्ट में शुरुआत में नहीं कर सकते हैं, और अगर कोई प्रोसेस से आप कर भी पाए तो वो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होगा। तो इस तरह से एक्स के रेस्पेक्ट में इसको शुरुआत में ना करके इसका ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन आप चेंज कर दीजिए, तो ये यहाँ पर एज ए ट्रीट होगा कांस्टेंट, और y के रेस्पेक्ट में करेंगे तो हमारा यहाँ पर कोई फंक्शन y का इन्वॉल्व नहीं है, यानी कि 1 रहेगा, 1 dy इस तरह से। तो हम उसको आसानी से इंटीग्रेट कर पाएंगे, और फिर जो एक्सप्रेशन हमें x के टर्म में ऑब्टेन्ड होगा वहां से इसको इसका कुछ ना कुछ सिंप्लीफाइड फॉर्म मिल जाएगा और हम इसको प्रोसीड कर पाएंगे। तो सबसे पहले मैं इसका ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन चेंज कर देता हूं। तो जो यहाँ पर इंटीग्रेशन में वेरिएबल इन्वॉल्व है, ये लिमिट होता है दूसरे का, यानी कि y है
तो ये x का लिमिट होगा, यानी कि x इक्वल टू 2y और x इक्वल टू 2। तो x इक्वल टू 2y, यानी कि अगर x इक्वल टू 2y है तो यहाँ से y इक्वल टू एक्स बाई 2 मिल जाता है, यानी कि x की कोई भी वैल्यू रखूंगा y की वैल्यू उससे कम आएगी, यानी कि हाइट कम रहेगी। तो आप देख सकते हैं ये इस तरह से आपका जाएगा, यानी कि इंक्लाइन टू एक्स एक्सिस ये रहेगा। अब यहाँ पर जो ये लिमिट है और x इक्वल टू 2 आपकी ये हो जाएगी, सपोज करो ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, x इक्वल टू 2, और ये y इक्वल टू 0 से y इक्वल टू 1, तो y इक्वल टू 0 ये है और y इक्वल टू 1 आपकी ये है। तो यहाँ पर आपका जो एरिया ऑफ इंटीग्रेशन है वो किस किस लाइन से बाउंड है, एक तो इस लाइन से बाउंड है, दूसरा x इक्वल टू 2 यानी कि इस लाइन से बाउंड है, और y इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0 आपकी ये लाइन हो जाती है, y इक्वल टू 0 और y इक्वल टू 1, y इक्वल टू 1 यानी कि ये लाइन। तो आप देख सकते हैं आपका जो एरिया ऑफ इंटीग्रेशन है वो ये वाला पार्ट है, यानी कि x इक्वल टू 2 और x इक्वल टू 2y, तो ये आपके x इक्वल टू 2 और x इक्वल टू 2y वो ये वाला रीजन हो गया इसके बीच में, और यहाँ पर इसमें आपका जो चल रहा है y वो 0 से 1 तक यहाँ तक जा रहा है। अगर हम कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं इस तरह से कि हमारा इंटीग्रेशन एरिया ऑफ इंटीग्रेशन ये वाला है या जो ऊपर की तरफ बन रहा है जिसको मैं स्टार से दिखा रहा हूँ यहाँ पर, ये वाला है, ये सॉरी क्रॉस से दिखा रहा हूँ, ये वाला है। तो यहाँ पर स्टूडेंट कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि ये लाइन रहा और यहाँ पर आप देख सकते हैं x इक्वल टू 2y हो गया, x इक्वल टू 2 ये भी हो गया जो यहाँ पर इंटरसेक्शन है, और आपका एक तरह से ये वाला भी हो गया y इक्वल टू 1। तो आप यहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले कर्व देखने चाहिए कि आप कौन कौन से कर्व, तो यहाँ पर एक कर्व ये है और एक कर्व ये है, और इन कर्वों के बीच में जो दूसरा वेरिएबल है y उसकी कांस्टेंट लिमिट जा रही है 0 से लेकर 1 तक। तो यहाँ पर अगर y की लिमिट 0 से 1 जाएगी, यहाँ पर अगर मैं y की जगह 1 पुट कर दूंगा तो x इक्वल टू आपका जो रहेगा 2 इंटू 1 हो जाएगा। यहाँ पर तो 2 से इधर मल्टीप्लाई करा दूंगा तो x इक्वल टू 2 इंटू 1, तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो हमारा ये होगा, यानी कि दो कर्व आपके ये हैं, एक ये है और दूसरा ये कर्व है। तो हमारा ये हो गया है एरिया ऑफ इंटीग्रेशन। अब इस एरिया ऑफ इंटीग्रेशन में शुरुआत में x के रेस्पेक्ट में लिया गया था, लेकिन अब हमें y के रेस्पेक्ट में लेना है, यानी कि y को वेरी कराना है। तो हम इस तरह से वर्टिकली एक स्ट्रिप कंसीडर कर लेंगे। तो ये आपकी जो जा रही है वो कहाँ से कहाँ तक जा रही है, y इक्वल टू 0 से, यानी कि यहाँ ये 0 है और ये इस लाइन तक टच कर रही है, यानी कि y पर यहाँ पर क्या वैल्यू होगा, x इक्वल टू 2। तो यानी कि इसका जो ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन है वो y इक्वल टू 0 से, और ये कर्व इस कर्व को टच कर रही है, यानी कि x बाई 2, और इसमें जो कांस्टेंट लिमिट है वो x का है, यानी कि 0 से आपका 2, x कहाँ से 0 से 2 तक वेरी कर रहा है। तो यहाँ पर हम शुरुआत में y के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो dy और e रेज टू द पावर एक्स स्क्वायर, या इसको आप आउटसाइड यहाँ भी लिख सकते हैं e एक्स स्क्वायर, ये यहाँ पर ना लिखकर, और इसका dx। तो अब सबसे पहले हम इतने को इंटीग्रेट कराएंगे, तो इसको इंटीग्रेट कराएंगे तो यहाँ पर 1 आएगा इसका इंटीग्रेशन, और फिर इसकी वैल्यू सॉरी लिमिट पुट करेंगे तो x अपॉन 2 माइनस 0 ये आएगा, फिर e रेज टू द पावर एक्स स्क्वायर dx, और 0 से 2 हमें ये इस तरह से एक्सप्रेशन ऑब्टेन्ड होता है, यानी कि इस 0 की कोई इंपॉर्टेंस नहीं, यानी कि सिंपली आप कह सकते हैं 0 से 2 x बाई 2 e रेज टू द पावर एक्स स्क्वायर dx। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं एक्स स्क्वायर यहाँ पर इन्वॉल्व है, तो इसका जो डिफ्रेंसिएशन है 2x वो यहाँ पर नहीं है, सिर्फ x है, यानी कि 1/2 आप आउटसाइड ले लेंगे,
और ये x dx आपका t से रिप्लेस कर देंगे तो e रेज टू द पावर t हो जाएगा। और तब हमारी जो लिमिट है तो यहाँ पर इसका मिल गया है, उस तरह से लिमिट 0 से 4 हो जाएगी। फिर तो अगर टी के उसमें करेंगे, अदरवाइज जब आपको यहाँ पर इसका डिफ्रेंसिएशन पता ही है तो डायरेक्ट यानी कि इसका जो इंटीग्रल होगा वो होगा 1/2, ये आउटसाइड है और यहाँ पर आपका 1/2 और है, इसको मैंने आउटसाइड ले लिया, और ए रेज टू द पावर एक्स स्क्वायर, और इसकी लिमिट वेरी कर रही है 0 से 2 तक। तो यहाँ पर आया 1/4 ए, यानी कि x की जगह 2 पुट करेंगे तो 2 रेज टू द पावर 2 4, ए की पावर 4 माइनस यहाँ पर 0 पुट करेंगे तो ए की पावर 0 यानी कि 1। तो हमारा जो फाइनल एक्सप्रेशन आया वो ये आया। और ये जो हमें इक्वल दे रखा है, ये किसके इक्वल दे रखा है कि ए रेज टू द पावर 4 माइनस 1, यानी कि ब्रैकेट जो है इनसाइड द ब्रैकेट वही हमें इधर भी मिल रहा है लेफ्ट और राइट में। तो k का वैल्यू क्या है, यहाँ पर k का वैल्यू 1/4। तो k इक्वल टू 1/4, और ये नेट टाइप का क्वेश्चन था, यानी कि इसको आपको डेसिमल में देना होगा, अप्रोक्स 2 पॉइंट लिख के देता है तो इसका वैल्यू होगा 0.25, ये क्वार्टर पार्ट है, तो 0.25 इसका आंसर होगा। कंसिडर द रियल वेक्टर स्पेस P2020 equal to this set. Let W be the subspace given by this set, then the dimension of W. We have to find dimension of W as P2020 set containing all polynomial of degree at most 2020, and this is a polynomial of degree at most 20 and having all those polynomial for which constant coefficients are even, like a0, a2, a4, a6 and so on up to a2020, because a1, a3, a5, a7, this will go to 0. So all polynomials or terms containing these coefficient will go to 0. It means a1 x, a3 x cube, a5 x raised to the power 5. These types of polynomial will go to 0 because of coefficients. Now we have to find dimension of W. If we are talking about dimension of vector space P2020, because this set containing all polynomials degree at most 20, its dimension a polynomial of degree at most n, then its dimension is n plus 1, so its dimension is 20, 21. How? Because these polynomials have constants polynomial represented by c, degree 1 polynomial, degree 2, degree 3 and up to degree 2020. To generate constant polynomial, we need 1. To generate this or 1 degree polynomial, we need x, then x square, x cube up to x raised to the power 2020. From here to here, there are 20 elements and 1 is this. So 20 plus 1 equal to 21. This is the dimension, and this is a standard ordered basis for P2020. Dimension of this one is this. Now come to the point, dimension of W. Because W contains only these coefficients,
So how many coefficients are there? Because 1 to 2020, either 1, 2, 3, A3, A4, A5, A6 up to A2020. 2020 are total coefficients, and A1, A3, A5, A7, A9, these are going to 0, means half of them is going to 0. So half of this is 10, 10, and constant, constant coefficient A naught is also there. So one element is extra. So this is the dimension of 1011. 1011 is the dimension of W, and basis of W will be 1 x square, x raised to the power 4, x raised to the power 6, and so up to x raised to the power 2020. All polynomials containing even power and 1, it will be the basis for W. Basis for W, this is. Sum of the series. This series is given to us and we have to find sum of this series. To find sum of the series, first we need Sn, sequence of partial sum, and its limit is known as sum of the series. So this is series, and this series can be written as 1 upon n, n square minus 1, n running from 2 to infinity. This is nth term of the series. Tn can be written as 1 upon n, n square minus 1. This is the nth term of the series where n greater than equal to 2. To find sum of the series, we need to partial fraction of this nth term. That's why we can apply easily limit concept, because if we get 1 upon some terms of n, some terms of n, plus or minus 1 upon or some number c times terms containing n here, so we can easily apply limit n tends to infinity, and we get the sum of the series. So our first target is resolve this nth term into partial sum or partial fraction. So it can be written as n, n plus 1, n minus 1, or you can do a upon n plus b upon n plus 1 and c upon n minus 1 to find the value of a, b, c, and you can write this one. So it is easy to write because there is no complicated terms in this. So it will be 1 upon n minus 1 minus 1 upon n plus 1. Here n plus 1 minus n plus 1, n cancel out by n. So you got 2. Take 2 in denominator to equalize this fraction. This is 1 upon 2n and 1 upon n minus 1 minus 1 upon n plus 1. It can be written as 1 upon 2 inside 1 upon n minus 1 minus 1 upon n plus 1. Now we get an equal to 1 upon 2, and this is 1 upon n minus 1 minus of n plus 1. Now try to write this term as a partial fraction. It can be written as 1 upon 2, 1 upon
n minus 1 minus 1 upon n. So n minus plus 1, it is perfect here. Minus 1 upon n minus 1 upon n plus 1. Here you got n plus 1 minus n, and minus n cancel out. So it is also perfect. There is no need to take a constant in denominator. Now this is your an, and an can be written as 1 upon 2. This is 1 upon n minus 1 minus 2 times n plus 1 upon n plus 1. These two terms make this one. Now what is first term, or a2? a2 will be 1 upon 2, 1 upon 2 minus 1, 1 minus 1, 2 upon 2 minus 1 upon 3. a3 will be 1 upon 2, 1 upon 2 minus 2 upon 3 minus 1 upon 4, and a4 will be 1 upon 2, 1 upon 3 minus 2 upon 4 plus 1 upon 5. Now in denominator 3, 4, 5, next 6, 4, 5, 6, it will be a5 will be 1 upon 2, 1 upon 4 minus 2 upon 5 plus 1 upon 6. a6 will be 1 upon 2, 1 upon 5 minus 2 upon 6 plus 1 upon 7, and a7 will be 1 upon 2, 1 upon 6 minus 2 upon 7 plus 1 upon 8. Now this is 1 by 1, and it is also cancel out. This is 1 upon 3 and 1 upon 3. So these two circle portion making 2 upon 3, it cancel out by this one. It means diagonal entry cancel out. This one similar here. This diagonal entry is cancel out, means 3 consecutive terms will cancel out diagonal terms. So left term will be left term. What is left term? Left term is this one and 1 upon 2, and in the last you will get this format, means 2 upon n plus 1 upon n plus 1. In the last only this term left. So an so sum of all a1 plus a2 or a2, a3, a4 plus a5 and so on is this one. Now this is partial sum, so it can be written as, this is partial sum Sn, and limit of this one, now Sn will be a2, a3, a4 and so on up to an, n greater than equal to 2, and this is obtained by 1 upon 2 minus 2 upon n plus 1 upon n plus 1. You can check here, you got this format as this green portion is giving the sum of consecutive terms. So apply limit Sn equal to 1 upon 2, 1 upon 2 minus 0 plus 0. It will equal to 1 upon 4, which one equal to 0.25.
So sum of this series is 0. Let m equal to this matrix, then the value of determinant 8i minus m cube is, we have to find determinant of 8i minus m cube, its determinant. We know the fact determinant of a raised to the power n equal to determinant of a raised to the power n. We will use to find determinant of this matrix. If anyhow we know the eigenvalues of 8i minus m, then their product will be determinant. Using this fact, we will try to attempt this problem. As we know, eigenvalues of 8i are 8, 8, 8, 8. How many times? Size of the matrix. Size of the matrix. Now find the eigenvalues of m to evaluate eigenvalues of 8i minus m. To evaluate eigenvalues of m, we have to find determinant of m minus lambda I equal to 0. We have to compute this one as m minus lambda I will be 9 minus lambda 0, 0, 0 to 7 minus lambda 0, 0. Diagonal entry will change only 7 to 11 minus lambda minus 5 and 1, 1, 6 minus lambda. This is the determinant m minus lambda I. Now expand this determinant according to first column. It will be 9 minus lambda, 7 minus lambda, and determinant of this 2 by 2 matrix, this is 11 minus lambda minus 5, 6 minus lambda, and determinant of this one will be 9 minus lambda, 7 minus lambda, and this one will be minus 11 lambda plus lambda square plus 30. Now factorize this. It will be 9 minus lambda, 7 minus lambda, and this one will be 11 lambda square minus 11 lambda plus 30. And factorize this. 5, 6 is 30. So 5 and 6 will be the factor of this one. So lambda lambda minus 5 and lambda minus 6 will be the factor of this one. Sorry, 9 minus lambda, 7 minus lambda. This is the determinant of m minus lambda I. So it's, you can say, characteristic polynomial equate with 0. It will be a characteristic equation to find eigenvalues. So lambda i's are 9, 7, 5, 6, and we know eigenvalue of 8i is 8, 8, 8, and we have to compute eigenvalues of 8 minus lambda I. So subtract these from 8. So 8 minus lambda, 8 minus 9, 8 minus 7, 8 minus 5, and 8 minus 6. It will give you minus 1, 1, 3, 2. So their product will be determinant of this one. This product is 6.
It means determinant of 8i minus m is equal to minus 6, and we have to compute determinant of this. So minus 6 cube, it will give you minus 216. It's a final answer. Now, student where can do mistake here. Suppose they are using this one. You can find first 8i minus m and find determinant of this one and cube it determinant of this one and take cube. It will also give the solution of this problem. Where student can do mistakes, suppose you are applying elementary raw operation directly on m, then eigenvalue may differ. Eigenvalue may be differ on applying elementary raw operation. So eigenvalue will be the last equivalent matrix. It is not for the this matrix M. So never apply elementary raw operation to find eigenvalues. So keep remember this point only. Otherwise you can, it is a very simple problem and you can do it. Let A is a linear transformation from R7 to R7 with nullity of t equal to 2, then the minimum possible value of rank of t square. यानी कि हमें t की नलिटी दे रखी है, नलिटी ऑफ t इक्वल टू 2, तो रैंक नलिटी थ्योरम से रैंक ऑफ t हो जाती है आपकी, क्योंकि ये 7 है तो ये होगी 5। अब हमसे जो पूछा गया है वो पूछा गया है रैंक ऑफ टी स्क्वेयर और उसकी मिनिमम वैल्यू पूछी गई है। उसकी भी क्या पूछी गई है? मिनिमम वैल्यू। तो आप जानते हैं जो रैंक ऑफ ए भी होता है वो लेस देन इक्वल टू होता है रैंक ऑफ ए कॉमा रैंक ऑफ बी। इसमें जो मिनिमम होगा उससे लेस देन होता है, यानी कि रैंक ऑफ प्रोडक्ट लेस देन होता है इंडिविजुअल रैंक में मिनिमम के। ठीक है, तो और ये ग्रेटर देन होता है, ये ग्रेटर देन होता है रैंक ऑफ ए प्लस रैंक ऑफ बी माइनस एन, यानी कि एन यहां पर क्या है, जो यहां पर प्रोडक्ट के लिए जो कॉमन फैक्टर होता है वो एन होता है यहां पर। यानी कि अगर ए और बी दो मैट्रिक्स हैं, सपोज करो m बाय एन और n बाय पी, तो यहाँ पर जो कॉमन है वो n है, तो यहाँ पर माइनस n और ये हो गया रैंक ऑफ ए बी और ये लेस देन होता है मिन ऑफ रैंक ए रैंक बी। अब रैंक ए यानी कि यहाँ पर टी की रैंक कितनी है, यहाँ पर 5 है, तो 5,5 तो इसका मिन भी आपका 5 हो जाएगा, तो 5 लेस देन रैंक ए बी का मीनिंग है कि आप अगर ए को भी टी कंसिडर कर लें और बी को भी टी, तो रैंक ऑफ टी स्क्वेयर हो जाएगा ये रैंक ऑफ टी स्क्वेयर। और यहाँ पर ए और बी मैंने टी ही कंसिडर किया है, तो ए की जो रैंक है वो आपकी 5 है, तो 5 प्लस 5 माइनस एन, और यहाँ पर जो n है वो आपका 7 है, तो आपका क्या रिलेशन मिला 10 माइनस 7 यानी कि 3 लेस देन इक्वल टू रैंक ऑफ टी स्क्वेयर लेस देन इक्वल टू 5। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मैक्सिमम रैंक 5 है और मिनिमम रैंक 3 है, जो हमसे पूछा गया था मिनिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ रैंक। तो यहाँ पर रैंक जो हो सकती है मिनिमम 3 हो सकती है। और यहाँ पर आप देख भी सकते हैं कि जो रैंक थी टी की वो 5 थी, यानी कि लास्ट में 2 0 रोज होंगी, 2 0 यहाँ पर जो 5 रोज होंगे अपर 5 रोज वो आपके कॉम्बिनेशन ऑफ 0 और नॉन 0 का हो सकता है, लेकिन थ्रू आउट 0 नहीं हो सकता है, थ्रू आउट यहाँ पर 2 ही रहेगा। तो जब इसको आप इसके साथ मल्टीप्लाई कराएंगे तो सेम 2 रो को जो आप कॉलम वाइज कराएंगे तो एंड में 2 रो यहाँ पर भी 0 0 आएगी। तो जो प्रोडक्ट है तो आप देख सकते हैं मैक्सिमम 5 इसमें
नॉन ज़ीरो रोज़ हो सकती हैं, और जो मिनिमम है वो आप इससे बता सकते हैं, इसके हेल्प से इस तरह से नहीं बता सकते हैं कि हाँ हाँ कितना होगा, क्योंकि हमें कोई पर्टिकुलर मैट्रिक्स हम इसके लिए यहाँ पर निकाल नहीं सकते हैं, तो इसलिए हम उसकी मिनिमम वैल्यू नहीं बता सकते, मैक्स बता सकते हैं, क्योंकि हमें जो रैंक है वो आप ये कह सकते हैं कि मैक्सिमम नंबर ऑफ नॉन ज़ीरो रोज़, तो वो बता देती है, तो हम इसलिए यहाँ पर मैक्सिमम रैंक बता सकते हैं कि कितनी हो सकती है।